Good afternoon, everyone. How are you? Okay. So today we have organized an open session on how to prepare certain general studies subjects. Okay. So for that we have chosen 5 subjects. First subject will be economics. It will be covered by Aditya Kalia sir. Second subject is society and ethics. It will be covered by Smriti Shahman. Third subject is your history. It will be taken by Himanshu Khatri sir. And the last subject will be polity. It will be covered by Amil Hassan sir. Okay, so broad idea about the subject coverage is that we'll introduce you the subject, what exactly is needed to prepare the subjects, what are the broad trends, what are the questions which are coming in the last few years, what you should be doing to prepare thoroughly. Okay. We'll try to keep the session more interactive. So if you have any questions, make sure that you raise your hand and ask your queries and use mic. Okay, do not just ask your questions, use mic to ask your questions. Okay, so we'll start with the session right now, and it will go around for one hour per session, 45 minutes for the faculty to complete the session, and 10-15 minutes for Q&A round. All right, so we'll start the session with economics, and I'll request Aditya Kalia sir to come and start with the economy session. Okay, thank you so much. A very good afternoon to all of you. Sab badhiya? All good? Chalo. My name is Aditya and I take economics here along with some other faculties. This session is about how to prepare for civil services. And because it is about the how, I'm assuming that you have answered the why yourself. तो मेरे ख्याल से वाई का आंसर करने के बाद और सेटिस्फाई होने के बाद, संतुष्ट होने के बाद फिर आप यहाँ पे बैठे हो कि यहाँ हमको प्रिपरेशन करनी है. कैसे करनी है वो उसके अगला सवाल होता है. चलो तो हम अब बात करेंगे कैसे करनी है, क्या करना है. One by one, faculties will come and they will talk about their respective subjects. I'll be talking about economics. So we'll focus on how to prepare for this economics section, how important it is, what sources to refer to, what can be a reasonable way that you are well prepared for this particular subject. What is it that we study in economics? कोई बता सकता है क्या पढ़ते हैं economics में? About money, चलो ठीक है, good. और budget और हाँ बोलो, scarce resources allocation, good. How does economy perform overall in the country? Okay. Macro, micro, चलो ठीक है, good. देखो सबसे पहले पढ़ने के लिए ये पता होना चाहिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं. सवाल सबसे इंपॉर्टेंट होता है. If you understand the question, then your job is half done. What is it that we study in economics, or for that matter in most of these subjects that you are going to come across during preparation? The basic problem, the basic issue that results in most of academic disciplines is the problem of limited resources, unlimited wants. सबने सुना होगा ये चीज, limited resources हैं, unlimited wants हैं. अब ये जो basic problem है, ये basic problem it leads to origin of 4 basic subjects. Resources limited हैं, wants unlimited हैं. That means somebody will have to take a decision as to how will those limited resources be utilized.
रिसोर्स लिमिटेड का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल लैंड है, लिमिटेड रिसोर्स है, सीड्स हैं, फर्टिलाइजर है, आदमी लोग हैं, ब्रिक्स, सीमेंट, कुछ भी चीज लिमिटेड है। और वॉन्ट्स अनलिमिटेड है। फॉर एग्जाम्पल लैंड, क्योंकि आपके पास केवल 20 हेक्टेयर है, आप उसके ऊपर 10 टन मैंगो, 20 टन मैंगोज उगा सकते हो, लिमिटेड अमाउंट। डिमांड ज्यादा है लेकिन उसके ऊपर आप यूज कम कर सकते हो। First and foremost, you need somebody to take a decision as to what will be done using those limited resources. लैंड के ऊपर मैंगोज उगाने हैं, टोबैको उगाना है, रियल एस्टेट बनाना है, बिल्डिंग बनानी है, क्या करना है? You need somebody to take a decision, decision maker. Origin of polity. Who gets to be the decision maker? Who will be the decision maker? चुनाव चल रहे हैं ना? Who gets to be the decision maker? Origin of polity. A politician, quote unquote, somebody who has been given an authority by the people, by the society. A politician gets to decide as to what will be the manner of use of limited resources. Second question, who has the higher probability of becoming that decision maker or politician? कौन बन सकता है? The resources are limited. That means those who control the resources will be in a position of greater power or not. आपकी सोसाइटी है, सोसाइटी में रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, लैंड लिमिटेड है फॉर एग्जांपल। अब जिसके पास लैंड होगा, जिसका लैंड के ऊपर कंट्रोल होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि वो रिसोर्सेज का इस्तेमाल कैसे किया जाए, वो डिसीजन लेगा। हाउ आर रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सोसाइटी? हाउ इज पावर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सोसाइटी? Which group, which section exercises power? Origin of society or social discipline. तो फर्स्ट पॉलिटी का ओरिजिन, डिसीजन मेकर। दूसरा सोसाइटी के एस्पेक्ट्स को स्टडी करना, सोसाइटी में कौन किसके पास क्या रिसोर्सेस हैं। डिसीजन मेकर हो गया, कौन बन सकता है ये तय हो गया। उसके बाद डिसीजन हो गया कि भाई हाँ, लैंड के ऊपर, आधे लैंड के ऊपर टोबैको ग्रो करेंगे, आधे के ऊपर मैंगोज ग्रो करेंगे। डिसीजन हैज बीन टेकन। अगेन, लिमिटेड रिसोर्स, अनलिमिटेड वांट्स। On that limited resource, you grow, let's say 20 tons mangoes, 20 टन मैंगो आप ग्रो कर रहे हो। सोसाइटी की डिमांड 100 टन की है, आप 50 टन ग्रो कर सकते हो और आप 20 टन ग्रो कर रहे हो। 3 नंबर्स अलग अलग समझ में आए? The society desires for 100 tons mangoes. Everyone in the society desires that I should have some house with me. But because land is limited, bricks are limited, cement is limited, labor is limited, only limited number of houses can be produced. How many will be produced? Who is deciding what is going to be produced? ये तो डिसीजन हो गया, पॉलिटी का और सोसाइटी का डिसीजन हो गया। 100 टन डिमांड थी, 50 टन बना सकते थे और केवल 20 टन बना रहे हो। मतलब करंट प्रोडक्शन जो है वो ऑप्टिमल है, सब ऑप्टिमल है। सवाल सुनो दोबारा से। The society demands 100 tons mangoes. Please. Society demands 100 ton mangoes. With the land that you have, you can grow 50 tons mangoes versus you are actually cultivating just 20 tons mangoes. 20 टन बना रहे हो जबकि 50 टन बना सकते थे। तो मतलब जो करंट प्रोडक्शन है वो ऑप्टिमल है, सब ऑप्टिमल है। सब ऑप्टिमल है ना? ऑप्टिमल, अगर 50 टन बना सकते हो तो कम से कम 50 टन बनाओ। 100 की डिमांड होगी, 50 बना सकते हो तो 50 तो बनाना चाहिए ना। लेकिन अगर 50 भी नहीं बना रहे हो, केवल 20 ही बना रहे हो, तब तो आप जितनी डिमांड मीट कर सकते थे उतनी भी मीट नहीं कर पा रहे हो। Who will advise the decision maker that whether you are producing optimally or suboptimally? Origin of economics. एक इकोनॉमिस्ट का काम ये होता है ये बताना कि कितना बना सकते हैं, उसको कंपेयर करेंगे कितना बना रहे हैं। क्या एक रीजनेबल टाइम फ्रेम में वी कैन रीच दैट स्टेज दैट वी कैन प्रोड्यूस व्हाट वी आर केपेबल टू प्रोड्यूस? वन, व्हाट इज इट दैट वी आर केपेबल टू प्रोड्यूस? Second, what is it that we are actually producing? And third, how can we reach that stage where we are actually producing what we can produce? This is where an economist comes in. And finally, जो आपने 20 टन या 30 टन मैंगोज बनाए हैं वो किस तरीके से सोसाइटी में डिस्ट्रीब्यूट होंगे? डिस्ट्रीब्यूशन शुड बी फेयर एंड जस्ट। ओरिजिन ऑफ एथिक्स। तो ये 4 बेसिक सब्जेक्ट्स हमारे जो सोशल साइंस के हैं वो इस बेसिक प्रॉब्लम से ओरिजिनेट होते हैं। द प्रॉब्लम ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज, अनलिमिटेड वांट्स।
origin of polity, who gets to decide, origin of society, how was power or resources distributed in the society, origin of economics, whether the current use of resources is optimal or not, and finally origin of ethics, how should or how can whatever is being produced, how can that be distributed in the society in a fair and just manner. हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स की, लेकिन हाँ इकोनॉमिक्स के जो सवाल होंगे उनमें कई सारे सवालों में पॉलिटिकल क्वेश्चन, सोसाइटल क्वेश्चन, एथिकल क्वेश्चंस आएंगे. As far as possible, we'll try to stick to economics. लेकिन reality is not only economics, reality is all the things. लेकिन हम जब क्लास में बात करेंगे तो हम केवल economics की बात करेंगे. कई बार overlap होगा, कुछ बार conflict भी हो सकता है. As far as possible, we'll try to avoid that conflict. Focus only on the economic element of our problems. So this is origin of economics. This is what we actually study in economics. दो branches हैं economics की. क्या बोला था आपने? Macro and micro. क्या होता है macro? क्या होता है micro? बताओ. मैक्रो इकोनॉमिक्स किसको बोलते हैं? हाँ, ओवरऑल, एग्रीगेट. माइक्रो मतलब इंडिविजुअल. ऑल राइट. हाउ मेनी ऑफ यू हैव बैकग्राउंड इन इकोनॉमिक्स? हाउ मेनी ऑफ यू डोंट हैव अ बैकग्राउंड इन इकोनॉमिक्स? इधर उधर देख लो, मैं इसी तरीके से बात कर रहा हूं कि आई एम अज्यूमिंग किसी का भी नहीं है. ठीक है, तो इसलिए आराम आराम से. मैक्रो एंड माइक्रो है ना, दो ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स. क्या है मैक्रो, क्या है माइक्रो? लेट्स अंडरस्टैंड. आई कम फ्रॉम नोएडा. अराउंड 70 किलोमीटर्स टू एंड फ्रो, आना जाना लगभग 70 किलोमीटर के आसपास है. आई हैव लिमिटेड रिसोर्स, मनी, एंड फ्रॉम दैट लिमिटेड रिसोर्स आई वांट टू परचेज अ कार. Let's say the value of car is, the money that I have is 10 लाख रुपीस. 10 लाख रुपए मेरे को गाड़ी खरीदनी है. अब मेरे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो मैं पेट्रोल की गाड़ी खरीदूं या डीजल की गाड़ी खरीदूं. लिमिटेड रिसोर्स एंड टू ऑप्शंस, वेदर टू बाय अ पेट्रोल कार और टू बाय अ डीजल कार. डीजल कार महंगी होती है या पेट्रोल कार महंगी होती है? अगर गाड़ी सेम है तो डीजल गाड़ी महंगी होती है, पेट्रोल गाड़ी नहीं, डीजल की गाड़ी महंगी होती है लगभग. अब डिपेंड करता है कौन सी गाड़ी है, किस रेंज की बात करें. नॉर्मली अगर 10 लाख की गाड़ी की बात करें तो इट इज अराउंड 1 लाख रुपीस. डीजल की गाड़ी एक्सपेंसिव होती है पेट्रोल गाड़ी से. लेट्स से मारुति सियाज आपको लेनी है तो 11 लाख की पेट्रोल आएगी, 12 लाख की डीजल का वर्जन आएगा उसका. अराउंड 1 लाख रुपीस मान लेते हैं डिफरेंस है डीजल की गाड़ी और पेट्रोल की गाड़ी में. 1, डीजल सस्ता है, पेट्रोल सस्ता है. विच इज द चीपर फ्यूल? डीजल इज द चीपर फ्यूल. गाड़ी का एवरेज डीजल की गाड़ी का ज्यादा है, पेट्रोल की गाड़ी का ज्यादा है? डीजल की गाड़ी का ज्यादा होता है, पेट्रोल का कम होता है. अगेन अज्यूमिंग अदर थिंग्स एज इक्वल, है ना. अब आप ये मत बोलो कि बस डीजल से चलती है तो बस का एवरेज ज्यादा होना चाहिए. नहीं, पेट्रोल से चलने वाली बस वर्सेस डीजल चलने वाली बस के अंदर डीजल की बस का एवरेज ज्यादा होगा, सेम गाड़ी की अगर हम बात करें तो. सो डीजल इज अ मोर एफिशिएंट फ्यूल, डीजल इज अ चीपर फ्यूल. एफिशिएंट भी है और सस्ता भी है. So if I come from Noida every day, if I use a diesel car, I would be spending, let's say, 400 rupees on fuel. If I use a petrol car, I would be spending, let's say, 500 rupees on fuel. महंगा भी है और कम एवरेज भी देता है. तो मेरे एक दिन में 500 रुपये लगेंगे पेट्रोल की गाड़ी से आने में, 400 रुपये लगेंगे डीजल की गाड़ी से आने में. मतलब अगर डीजल की गाड़ी इस्तेमाल करता हूं तो एक दिन में कितना पैसा बचाऊंगा? 100 रुपये एक दिन में बचाऊंगा. एक महीने में 3000 रुपये, एक साल में लगभग 30,000 रुपये के आसपास बचाऊंगा. अराउंड 30,000 रुपीज पर ईयर इफ आई यूज अ डीजल कार वर्सेस पेट्रोल कार. डीजल की गाड़ी खरीदने के लिए मैंने कितना रुपया एक्स्ट्रा दिया था? 1 लाख रुपए महंगी थी डीजल की गाड़ी. तो कितने साल में मैंने जो एक्स्ट्रा पैसा दिया उसको रिकवर कर पाऊंगा? लगभग 3 साल में रिकवर कर पाऊंगा. बिकॉज आई पेड 1 लाख रुपीज एक्स्ट्रा टू बाय अ डीजल कार एंड डीजल इज अ चीपर एंड मोर एफिशिएंट फ्यूल. I will be able to recover the premium, the extra that I paid to buy a diesel car in around 3.5 years. Let's say 4 years. 4 साल में उसको recover कर पाऊंगा, depending upon everybody's driving condition. Coming back, आज मेरे को गाड़ी की choice करनी है, whether should I buy a petrol car or diesel car. If I do this calculation, then the only thing that I have to decide upon is कि मैं कितने time तक गाड़ी अपने पास रखना चाहता हूं. अगर मेरी सोच ये है कि मैं 3 साल के अंदर अंदर गाड़ी चेंज कर लूंगा, should I buy a petrol car or a diesel car? If I have to replace my car within 3 years, should I buy right now diesel car or petrol car? Petrol car. It doesn't make sense to pay higher amount at present for a diesel car, even though it is going to be cheaper in running,
because I will not be able to recover that extra amount. It makes sense for me to buy a petrol car today. If I plan to keep my car for 7 years, 8 years, it makes sense to spend more today to buy a diesel car because the running cost would be less. Microeconomics. This decision with respect to limited resources, ये किसने लिया? मैंने लिया. Resources किसके थे? मेरे resources थे. मैंने अपने लिए एनालाइज किया कि मेरे पास जो पैसा है उस पैसे को ऑप्टिमली कैसे खर्च करना है. क्या है इकोनॉमिस्ट का काम? व्हाट इज ओरिजिन ऑफ इकोनॉमिक्स? वेदर द यूज ऑफ रिसोर्सेज इज ऑप्टिमल और नॉट. माय रिसोर्सेज वर 10 लाख रुपीस एंड आई वाज डिसाइडिंग वेदर आई एम यूजिंग देम ऑप्टिमली और नॉट. To purchase a diesel car, if I plan to keep my car only for 2 years, is a suboptimal use of resources. To purchase a petrol car, if I plan to keep my car for 2 years, is an optimal use of resources. Vice versa, if I plan to keep my car for 6 years, purchasing a diesel car would be an optimal use of resources. समझ में आया है? Microeconomics decision. I have to decide what will I do with my resources. गर्मी हो रही है, आपको AC खरीदना है. AC की रेटिंग होती है ना 3 स्टार 5 स्टार AC. क्या मतलब होता है रेटिंग का? What is this rating? What does it signify? Consumption, energy efficiency. कि भाई कौन सा एसी कितना एफिशिएंट है. तो 3 स्टार कम एफिशिएंट है, 5 स्टार ज़्यादा एफिशिएंट है. मतलब कम बिजली खाएगा वर्सेस ज़्यादा बिजली खाएगा. 3 स्टार ज़्यादा बिजली लेगा, 5 स्टार कम बिजली लेगा. 5 स्टार AC is going to be expensive. 5 स्टार AC will be expensive but will consume less electricity. 3 स्टार AC cheaper but will consume more electricity. If you simply evaluate कि एक दिन में कितने घंटे AC चलाएंगे, कितने साल तक एसी अपने पास रखेंगे, कैन यू देन नॉट इवेल्युएट विच इज द राइट चॉइस टू डू इन एक्सरसाइज टुडे, वेदर टू बाय 3 स्टार एसी और 5 स्टार एसी. अगर आपके घर में एसी लगा हुआ है, रूम पे एसी लगा हुआ है, कितने साल में एसी चेंज करते हो? शायद नहीं करते हैं. एसी की आप सर्विस करवाते हो रेगुलरली. एसी काइंड ऑफ परमानेंट इंस्टॉलेशन है. अगर खराब नहीं होता है तब तक आप उसको इस्तेमाल करते 10-12 साल तक. चांसेस आर इफ यू आर यूजिंग योर एयर कंडीशनर फॉर 4 hours पर डे, you will be able to recover the extra money that you pay to buy a 5-star AC within 5 years only. 5 साल के अंदर आपने जो बिजली का खर्चा बचाओगे, 5 साल में उसको रिकवर कर लोगे, अगर आप केवल 4 घंटे एक दिन में एसी इस्तेमाल करते हो. आप क्या कर रहे हो? What are you doing? You are assessing you had a limited resource, money. You had to take a decision whether to buy an AC 3-star or 5-star. You did these calculations for yourself that how will your resources be optimally utilized. What is it that you are doing? You are actually practicing microeconomics. This is microeconomics in practice. Is this clear? डीजल और पेट्रोल में से ज्यादा पॉल्यूटिंग फ्यूल कौन सा है? पॉल्यूशन ज्यादा कौन से फ्यूल से होता है? डीजल. पॉल्यूशन हम सबको इफेक्ट करता है. Let's say you are a bureaucrat in Ministry of Finance who is concerned about pollution in the country. People were deciding to buy diesel cars based on their running cost and based on how much are they going to spend on running. वो जो हमने डिस्कशन किया था. आप मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में ब्यूरोक्रेट हो और आपने क्या किया? आपने देखा डीजल एक पॉल्यूटिंग फ्यूल है, तो क्यों ना डीजल की गाड़ी के ऊपर एक एक्स्ट्रा टैक्स लगा दिया जाए. लेट्स से सम एनवायरमेंटल टैक्स डीजल की गाड़ी के ऊपर लगा देते हैं. And by doing that, you have made diesel car expensive by 1 more lakh rupees. पहले 1 लाख रुपए महंगी थी, अब 2 लाख रुपए महंगी हो गई है डीजल की गाड़ी. अब क्योंकि डीजल की गाड़ी 2 लाख रुपए महंगी हो गई है, तो जो ब्रेक इवन पॉइंट है वो और पीछे चला गया ना. पहले आपको लगभग 3-3.5 साल लग रहे थे, अब आपको शायद 7 साल लगेंगे, 8 साल लगेंगे. Many people will now decide not to buy diesel car, rather they would buy petrol cars. सबको समझ में आ रहा है? By making the diesel car expensive, is that decision affecting only that bureaucrat or everybody in the society? It is affecting everyone in the society. Everyone's decision whether to buy a car, petrol or diesel, is being affected because a bureaucrat decided to impose an additional tax, environmental tax on a diesel car. ये decision tax levy करने का ये सबको affect कर रहा है, एक किसी पर्टिकुलर एंटिटी को नहीं कर रहा है. आपके पास पैसा लिमिटेड है, आपको कौन सा मोबाइल फोन लेना है, कौन सा एसी लेना है, कौन सा रेफ्रिजरेटर लेना है, कौन सी गाड़ी लेनी है, ये एक पर्सनल डिसीजन है जो कि केवल आपको इफेक्ट करता है. Versus if somebody tries to impose a tax upon some cars or some kind of goods, somebody say that we are going to make it mandatory that every kind of electronic appliance comes up with an energy rating. अगर कोई ऐसा काम करता है तो वो सबके डिसीजंस को इफेक्ट करेगा. माइक्रो वर्सेस मैक्रो. समझ में आया क्या है माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स? कौन मैक्रो इकोनॉमिक डिसीजन ले सकता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स
सबको नॉलेज होनी चाहिए, बिकॉज आप सब लोग अपना पैसा खर्च करोगे. राइट नाउ लेट्स से यू आर स्पेंडिंग योर पेरेंट्स मनी, after some time you are going to spend your own money. Obviously everybody should be aware of microeconomics as to how to use your personal money efficiently. But macroeconomic decision, somebody takes a decision which is going to affect everybody else, that is a macroeconomic decision. Who can take that decision? Government can take that decision, the policy makers can take that decision. What is it that your people are aspiring to become? क्या बनने के लिए यहाँ पे क्लास में बैठे हुए हो? सिविल सर्वेंट्स. मतलब जब आपका एग्जाम होगा तो आपके एग्जाम में किस चीज के सवाल पूछे जाएंगे? आपको किस चीज की स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए? मैक्रो इकोनॉमिक्स की. माइक्रो की होनी चाहिए लेकिन मैक्रो की तो होनी ही चाहिए. इट इज गुड दैट एवरीबडी इज अवेयर और शुड बी अवेयर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स पर्सनल फाइनेंसेस के लिए. बट बिकॉज यू आर स्पेसिफिकली प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज, यू आर रिक्वायर्ड टू बी, somebody who is doing something else is not required to be aware of macroeconomics, but you are especially required to be trained, tested for macroeconomics. इसीलिए जो हमारा सिलेबस है इकोनॉमिक्स का, that is mostly centered around macroeconomics only. You look at previous year questions, most of the questions that have been asked have been from macroeconomics only. Macroeconomics meaning where the decision is such that it does not affect one entity in particular, rather it affects everybody in general. That is what macroeconomics is. How to prepare for economics and civil services? First you have to understand what is it that you are going to prepare. You are going to prepare primarily for macroeconomics. Now what are the topics that you come across in macroeconomics? क्या क्या टॉपिक हैं जो आपको पढ़ने हैं? ओके, या क्या क्या टॉपिक्स हैं जो हमको पढ़ने? लेट्स सी. First is you have to study something called as developmental economics, which has broadly speaking three topics: poverty, inequality, and unemployment. Then comes basic macroeconomics, where you study the topics of national income accounting, and inflation. Then comes the topic of money. वन, मेरी राइटिंग ऐसी ही है. दूसरा, मैं इस पेन से पहली बार लिख रहा हूं तो ये और खराब आ रही है. लेकिन हाँ, मैं बोल भी रहा हूँ साथ साथ, सो आई एम श्योर यू आर लिसनिंग टू इट. बैंकिंग एंड फाइनेंशियल मार्केट्स.
This is what broadly our syllabus is. The topics that we cover in class that you are supposed to cover, these are the topics which you're supposed to be aware of. The questions come from these topics. The first one is developmental economics, where we study the topics of poverty, inequality, unemployment. Then is the topic of basic macroeconomics, where we study national income accounting and inflation. Then comes the topic of money. Money में हम पढ़ते हैं money क्या है, monetary policy and banking and financial markets, stock markets basically. Then external sector, जहाँ पे हम पढ़ेंगे trade, balance of payments, exchange rates, international institutions like IMF, World Bank, WTO. And finally, the topic is budgeting and fiscal policy, where we study budget, schemes, industry, planning, infrastructure, taxation. These are our topics that we have to come across, that we study in our classes. Or for that matter, if you have to prepare yourself, these are the topics that you have to be aware of. अगर आप यूपीएससी के द्वारा दिया गया सिलेबस देखोगे, when you look at prelims syllabus, it is as vague as it can be. इतना वेग है, उसमें कुछ नहीं लिखा है, कुछ नहीं समझ आता. लिखा है डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, इश्यूज ऑफ पॉवर्टी, डेवलपमेंट एंड सो इंक्लूसिव ग्रोथ. सवाल देखोगे तो सवाल सब इन्हीं टॉपिक से निकल के आते हैं. मेंस का जो सिलेबस है, दैट इज अ लिटिल बिट more specific, but then again the nature of questions that are asked, that is a more important source of ascertaining the syllabus rather than looking at the syllabus itself. जैसे एग्रीकल्चर का टॉपिक है, एग्रीकल्चर का टॉपिक देखो, वहाँ पे टॉपिक्स हैं, हमने यहाँ पे लिखा है एग्रीकल्चर, इसी के अंदर फिस्कल पॉलिसी वाले के अंदर एग्रीकल्चर. अब एग्रीकल्चर का टॉपिक अपने आप में इतना बड़ा है दैट इट कंप्राइजेज ऑफ, एग्रीकल्चर इटसेल्फ विल कंप्राइज ऑफ science and tech, society, geography, economics. So agriculture is itself so big. So when you look at syllabus is, in my opinion, not that good of a guide. Rather a better guide is previous year questions. तो ये जो जितना भी syllabus यहाँ पे लिखा है, ये previous year questions of prelims and mains देख के हमने बनाया है. I would strongly recommend that you people watch the 7-year session that we recently did. वो YouTube पे available है, तो आप वो देखना. 7-year सेशन का 7-year प्रीलिम्स क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए. तो वी हैव डिस्कस्ड ऑल दी क्वेश्चंस टॉपिक वाइज, सो प्लीज हैव अ लुक एट दैट सेशन एज वेल. तो एक एक सिलेबस का टॉपिक हमने डिटेल में डिस्कस विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस किया है, ठीक है, तो उसको भी आप देख सकते हो. तो ये हमारा सिलेबस है. तो सबसे पहले प्रिपेयर कैसे करना है, हाउ टू प्रिपेयर में वी मस्ट नो व्हाट इज इट दैट वी आर गोइंग टू प्रिपेयर. Our focus is broadly on macroeconomics concepts, and these are the concepts that we need to be aware of. So what of our syllabus is here? The next part is how do we prepare, किस तरीके से हमको प्रिपेयर करना है, हमारे सोर्सेस क्या हैं, कैसे हम प्रिपेयर करेंगे. Now obviously everybody knows the basic source of preparation क्या है, NCERT. Before that, how many in the class who have already given some attempts? कोई है जिसने ऑलरेडी अटेम्प्ट दिया है अभी तक? मोस्ट ऑफ यू आर न्यू, मोस्ट ऑफ यू, 2 of you have given attempt, most of you are new. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू शुड नो. देखो ये तो सबको पता है कि एनसीईआरटी पढ़नी है, लेकिन सबसे पहले क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है. द फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ योर प्रिपरेशन इज, एंड दिस नॉट जस्ट फॉर इकोनॉमिक्स, फॉर ऑल सब्जेक्ट्स, इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, PYQs. ये सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है प्रिपरेशन का, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. अभी तक आपने प्रिपेयर नहीं किया है, यू हैव नॉट रेड, इवन इफ यू हैव रेड, आई विल अज्यूम दैट यू हैव नॉट रेड. You have not read things, you are not aware of things, you can't solve previous year questions. The purpose is not to solve previous year questions, that is not the purpose. The purpose is look at previous year questions and understand, one, what are the topics from which UPSC is asking questions, what is the nature of questions, what is the depth that you have to go to understand the topics. The most important point is the third point, the depth that you have to go to understand topics so that you are able to answer questions. आपकी प्रिपरेशन जर्नी में आपको वेल इंटेंशनड कई लोग मिलेंगे, आपके टीचर्स, आपके मेंटर्स, आपके पेरेंट्स, आपके सीनियर्स, आपके फ्रेंड्स. अज्यूम करो कि सब लोग बेस्ट ऑफ इंटेंशन से आपको गाइड करेंगे. क्या गाइड करेंगे? ऐसे पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये टॉपिक नहीं पढ़ना है. सुनो सबकी, करो मन की, करो अपनी.
लेकिन मन की कैसे करेंगे? मन में आवाज आने के लिए एक रैशनल आवाज होनी चाहिए ना, वो आवाज कहां से आएगी? ओनली व्हेन यू हैव लुक्ड एट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ओनली लुक एट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। फॉर एग्जांपल आई जस्ट सेड लुक एट 7 ईयर एनालिसिस जो हमने अभी किया है। वी हैव डन एन एलैबोरेट एनालिसिस ऑफ लास्ट 7 ईयर क्वेश्चंस। हमने सारे सवाल डिस्कस किए हैं। घर पे जाओ और YouTube पे 2x 3x स्पीड के ऊपर उन वीडियोस को देखो। पर्पस सवाल सॉल्व करना नहीं है, ना कर सकते हो ना ही करने हैं। एक भी क्वेश्चन में पॉज करके सवाल सॉल्व करने की कोशिश मत करना। डोंट असेस योरसेल्फ कि मैंने पिछले साल के कितने सवाल सॉल्व कर लिए हैं, पर्पस वो है ही नहीं। One, you cannot solve. Second, even if you are trying to solve or even if you are able to solve, it is only a matter of luck that you get the answer right. जब आपने अब तक पढ़ा ही नहीं है तो फिर कैसे सवाल सॉल्व कर सकते हो? पर्पस सवाल सॉल्व करना नहीं है। पर्पस जो भी पर्सन डिस्कस कर रहा है उसको सुनो कि इस सवाल का मोटिवेशन क्या है, किस चीज से ये सवाल इंस्पायर होके आया है, क्या डेप्थ ऑफ नॉलेज रिक्वायर्ड है इस सवाल को सॉल्व करने के लिए। जब आपके टीचर आपको या फिर आप कहीं से भी मॉनेटरी पॉलिसी का चैप्टर पढ़ोगे तो पीपल विल टेल यार बस ये रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, CRR SLR पढ़ लो एंड तुम्हारा काम हो जाएगा, प्रीलिम्स के अंदर सवाल निकल जाएगा। एक सवाल नहीं दिखेगा तुमको डायरेक्टली इन चीजों के ऊपर से, एक सवाल नहीं दिखेगा। दे आर सिंपली पासिंग रेफरेंसेस इन सम ऑप्शन इन अ क्वेश्चन। You need a clear-cut understanding of what monetary policy is, what money supply is, how does money supply increase or decrease. You need that understanding. तो केवल ये याद कर लेना कि रेपो क्या है, रिवर्स रेपो क्या है, उससे तुम्हारा काम नहीं बनने वाला है। इसीलिए डेप्थ ऑफ क्वेश्चंस दैट हैज बीन आस्क्ड इन द एग्जाम वो असेस करना जरूरी है प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले। और वो कहां से असेस होगी? वो असेस होगी व्हेन यू लुक एट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सो योर फर्स्ट सोर्स ऑफ प्रिपरेशन शुड बी, इट इज लाइक यू वांट टू रन अ मैराथन, डोंट यू वांट टू नो दैट व्हाट इज एक्चुअली मैराथन? कि जो लोग भाग रहे हैं वो लोग क्या प्रिपेयर करते हैं, किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं। भागना है आपको, भाग तो कोई भी लेगा यार, कोई भी भाग सकता है। So please go and have a look at previous year questions first before you begin your preparation. That is your first and most important source. Now when you look at previous year questions, then comes your basic conceptual sources. Concept कहां से पढ़ेंगे हम? इसके लिए obviously one source is your NCERTs and second source is any material. I'll talk about this in a moment. NCERT, देखो 3 NCERTs हैं आपके पास क्लास 11th और 12th की, 11th एंड 12th की मिला के टोटल 3 NCERTs हैं। NCERTs आर इंडियन इकोनॉमी, मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये 3 NCERTs हैं क्लास 11th और 12th की। इंडियन इकोनॉमी पढ़नी ही पढ़नी है, मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़नी ही पढ़नी है, माइक्रो इकोनॉमिक्स up to you whether you want to read or not. Me corrupting your preparation. अपनी बेस्ट ऑफ इंटेंशन से मैं आपको एडवाइस दूंगा, लेकिन वो जो एडवाइस है वो मेरा एडवाइस है, उससे इफेक्ट आपके ऊपर ही पड़ेगा। ये किताब पढ़नी है कि नहीं पढ़नी है आपका डिसीजन होना चाहिए। ये डिसीजन कहां से निकल के आएगा? तभी निकल के आएगा जब आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे होंगे तो, कि भाई इस चैप्टर को पढ़ो या नहीं पढ़ो, वो डिसीजन शुड बी योर्स, इट कांट बी समबडी एल्सेस डिसीजन। In my opinion, at least you should read chapter 1 of microeconomics. But हाँ, ये जो बाकी 2 किताबें हैं, Indian economy and macroeconomics, ये तो read them as many times as you can. In my opinion, I think the best book of economics ever written. This macroeconomics जो किताब है ना, economic के concept के लिए बहुत ही अच्छी किताब है. So please refer to this particular book. Other source, you need a comprehensive source. सिलेबस के रिस्पेक्ट में सोर्स देखो, सिलेबस काफी वाइड है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अंदर सवाल कई जगह से पूछे जाते हैं। मेनी क्वेश्चंस NCERT विल बी एबल टू आंसर, बट मेनी NCERTs विल नॉट बी एबल टू आंसर। फॉर दैट यू नीड अ वाइडर सोर्स, अ मोर कॉम्प्रिहेंसिव सोर्स। स्टिक टू एनी स्टैंडर्ड मटीरियल। फॉर एग्जाम्पल, जो हमारा विजन आईएएस का प्रिंटेड मटीरियल है, आई थिंक दैट इज अ वेरी गुड मटीरियल, विजन आईएएस प्रिंटेड मटीरियल। फॉर दैट मैटर, इफ यू वांट टू रीड सम अदर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स मटीरियल, प्लीज गो अहेड एंड रीड। मैं उसके लिए वाउच नहीं कर सकता हूं, मैंने ना पढ़ा है ना मैंने उसको देखा है। आई एम श्योर सब लोग मेहनत करके अच्छा मटेरियल बनाते होंगे।
हमने बनाया है मटेरियल अच्छा मेहनत करके, अपडेटेड मटेरियल है, एरर फ्री मटेरियल है। मैं हर बार क्लास में बच्चों को बोलता हूं कि इफ यू फाइंड एनी एरर इन दिस प्लीज ब्रिंग इट टू अस एंड वी विल बी एबल टू करेक्ट इट फॉर द नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स। पिछले 4 या 5 साल से मेरे पास कोई स्टूडेंट नहीं आया है, तो आई एम अज्यूमिंग कि कोई एरर नहीं है। अगर कोई होती है तो हम उसको करेक्ट करवा देते हैं। तो एज ऑफ नाउ देयर इज नो एरर। कॉम्प्रिहेंसिव है, अपडेटेड है, एरर फ्री है, बहुत अच्छी तरीके से इंफॉर्मेशन प्रेजेंट की गई है इन्फोग्राफिक्स में, डायग्राम्स में। सो आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड सोर्स। देखो, आपको आप ये मत देखो कि आपको कोई स्टैंडर्ड किताब जो किसी टॉपर ने बोली है वो आपको रेफर करनी है। देयर आर मेनी गुड बुक्स, एवरी मटीरियल, एवरी बुक इज गुड। Your purpose is not to refer to one specific book. Your purpose is refer to some source which is comprehensive, which covers all the syllabus, which is updated, which is expected to be error free. That is what your purpose is. And this material has all these properties. Point being, if you refer to other some standard book, कोई कई सारी standard books आती हैं, अगर आप कोई भी एक standard book उठाते हो तो आप केवल एक book उठाओ, बाकी अलग अलग आप book collector बनने नहीं आए हो, ठीक है ना? आपको किताबें कलेक्ट नहीं करनी है, आप एक स्टैंडर्ड बुक उठाओ, उसी को रेफर करो। इन माय ओपिनियन दिस इज अ वेरी गुड स्टैंडर्ड बुक। विजन एज का जो मटेरियल है कॉम्प्रिहेंसिव है, काफी बड़ा है, समय है आपके पास, पूरा का पूरा पढ़ सकते हो इस चीज को। सो दिस बिकम्स योर सोर्स फॉर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। एनसीईआरटी, नो डाउट अबाउट दैट, देयर इज नो रिप्लेसमेंट टू देम, एंड योर मटेरियल विच इज दिस। द थर्ड सोर्स इज करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स, no replacement of newspaper. कोई वीडियो एनालिसिस, कोई शॉर्ट एनालिसिस, कोई शॉर्ट समरी न्यूज़पेपर का रिप्लेसमेंट नहीं है। न्यूज़पेपर इज नॉट मेयरली न्यूज, न्यूज़पेपर इज अ एक्सेलरेटर कोर्स फॉर योर मैच्योरिटी। क्लास में आपको क्या मिलेगा? एकेडमिक नॉलेज। Next stage of academic knowledge would be your clarity of those concepts. क्लास में आपको क्लैरिटी मिल सकती है, नॉलेज एंड क्लैरिटी मिल सकती है। उस एकेडमिक क्लैरिटी के बाद नेक्स्ट स्टेज इज प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन ऑफ दैट एकेडमिक नॉलेज। क्लास में वो लिमिटेड है, वो आपको न्यूज़पेपर से ही मिलती है। एकेडमिक क्लैरिटी के बाद प्रैक्टिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, वो जो डिस्टेंस है उसी को मैच्योरिटी बोलते हैं। क्लास में आप पढ़ लोगे चीजें, कॉन्सेप्ट समझ जाओगे। क्लास में हम इन्फ्लेशन का टॉपिक पढ़ेंगे, क्लास में हम फिस्कल पॉलिसी, बजटिंग का टॉपिक, मॉनेटरी पॉलिसी का टॉपिक पढ़ेंगे। लेकिन इकोनॉमी जो रियल वर्ल्ड है, रियल वर्ल्ड इज नॉट कंस्ट्रेन्ड बाय कि हमारी क्लास में क्या चल रहा है। रियल वर्ल्ड में इन्फ्लेशन भी है, अनएम्प्लॉयमेंट भी है, फिस्कल पॉलिसी भी है, टैक्सेशन भी है, हर चीज साथ में चल रही है। क्लास में हम सबको एक साथ रायता बन जाएगा, क्लास में हम नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन रियल वर्ल्ड में सब कुछ एक साथ है। वो रियल वर्ल्ड इंफॉर्मेशन आपको न्यूज़पेपर से मिलती है। इट्स नॉट मेयरली न्यूज, न्यूज नहीं है ये, आपने जो क्लासेस में पढ़ा है उन सबका एक कलेक्टिव एप्लीकेशन है। सो प्लीज अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस थिंग। 100% ऑफ जीएस पेपर 2, 100% ऑफ जीएस पेपर 3 इज न्यूज़पेपर। 100%, एक एक सवाल अखबार से पूछा गया है। The portion of society, the portion of geography and environment in paper 1 is from newspaper. Pick up last 11 years papers of paper 4. Ethics का जो पेपर है, एथिक्स के पेपर में जो केस स्टडी का पोर्शन है, 125 नंबर का जो हाफ पोर्शन है, एक भी केस स्टडी ऐसी नहीं है जो अखबार के बाहर से आई है। एंड आई डोंट हैव टू एम्फसाइज कि ऐसे में आप कितना कुछ लिख सकते हो अगर आपने अखबार पढ़ा तो अखबार की इंपॉर्टेंस कभी अंडर एस्टिमेट मत करना। तो न्यूज़पेपर, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स। बट हाँ, ये बात तो है ही, करंट अफेयर्स अंडरस्टैंड तभी कर पाओगे जब आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होगी। तो मेक श्योर दैट दिस इज ऑल्सो देयर एंड दिस ऑल्सो, नॉट ओनली दिस नॉट मेयरली दिस, बट दिस हैज टू बी देयर। दिस इज काइंड ऑफ अ नेसेसरी इंग्रेडिएंट एंड दिस ऑल्सो नेसेसरी इंग्रेडिएंट, न्यूज़पेपर्स। वन मोर सोर्स, योर करंट अफेयर्स मैगजीन, जैसे विजन आईएएस की मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन है। न्यूज़पेपर इज योर प्राइमरी सोर्स, करंट अफेयर्स मैगजीन इज अ रिवीजन सोर्स। ये गड़बड़ मत कर देना कि हाँ मैंने मंथली करंट अफेयर्स पढ़ लिया तो मेरा अखबार हो गया, मेरे को सब कुछ याद हो गया है। अगेन, डोंट थिंक ऑफ न्यूज़पेपर एज सम न्यूज आइटम्स दैट यू हैव टू रिमेंबर। याद नहीं करना है अखबार, अखबार पढ़ना है। न्यूज़पेपर रीडिंग, नॉट रिमेंबरिंग। कितने लोगों ने अखबार पढ़ना स्टार्ट कर रखा है? द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस? हाँ,
हाउ मच टाइम डज इट टेक फॉर यू टू रीड द न्यूज़पेपर? कितना समय लगता है? हाँ, 2 hours, 2.5, many times 3 hours also. और जब पहला स्टार्ट करते हैं पहले महीने में, तब तो पूरा पढ़ भी नहीं पाते हैं, 3 घंटे बीत जाते हैं, बोर हो जाते हैं, नींद आ जाती है ना. Why do you think that it takes 2 hours to read newspapers? 2 hours, 2.5 hours to read newspaper? हाँ, समझने में समय लगता है, ठीक है. हाँ, बैकग्राउंड नहीं. आपको अखबार पढ़ने में 2.5-3 घंटा इसलिए लगता है क्योंकि आप अखबार को पढ़ नहीं रहे हो, आप उसको याद करने की कोशिश करते हो. यू कम अक्रॉस न्यूज़पेपर, यू सी दैट इट्स वेरी गुड लैंग्वेज रिटन, कुछ बहुत अच्छा फैक्ट आपको मिला है, आप सोचते हो कि ये फैक्ट मेरे पास एग्जाम में काम आएगा, ये सेंटेंस या स्टेटमेंट में एग्जाम में रिप्रेजेंट कर दूंगी, इसको वैसे का वैसा के लिख दूंगी एग्जाम में, अच्छे नंबर मिलेंगे. इसीलिए आप बार बार उस लाइन को, उस पैराग्राफ को, उस फैक्ट को पढ़ते हो. यूजलेस है वो चीज आपका टाइम लेके जाती है. अखबार को केवल पढ़ो, जस्ट रीड इट, डू नॉट ट्राई टू रिमेंबर इट. आपको लग रहा है कि मैंने याद नहीं किया तो कुछ छूट गया है मेरा, कुछ नहीं छूटा है आपका. अखबार को केवल पढ़ो. आज के अखबार में, कल के अखबार, परसों के अखबार, 70% न्यूज कॉमन है. योर पर्पस, योर फोकस शुड बी टू रीड एंड रीड, टू रीड एंड रीड न्यूज़पेपर्स एवरी डे. When you read today's newspaper, if you have read last 1 month, 2 months newspaper, whatever you read, many things you will automatically retain in your mind. Do not even focus on remembering एक भी फैक्ट. यार अखबार में एक दिन में 1 करोड़ रैंडम फैक्ट्स होते हैं. कोई नहीं बता सकता कि उनमें से क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है. मैं नहीं बता सकता, आप खुद नहीं डिसाइड कर सकते हो. कुछ भी याद नहीं करना है, वो पर्पस नहीं है याद करने का. डू नॉट ट्राई टू रिमेंबर थिंग्स, सिंपली रीड न्यूज़पेपर. रीड इट, दैट शुड बी योर हैबिट. वो एक आदत है, वो कोई सोर्स नहीं किसी चीज का, वो एक मैच्योरिटी डेवलप करने का तरीका है. नोट्स बताऊंगा. मंथली करंट अफेयर्स, यहां से आप रिवाइज करोगे जो आपने पढ़ा है. अगेन, इसको भी केवल पढ़ना है, याद नहीं करना. जस्ट रीड इट, ट्रस्ट योर सेल्फ. अगर आप जो कि डेली अखबार पढ़ रहे हो, आप जो कि मंथली करंट अफेयर्स को, जैसे विजन आईएएस की मैगजीन है, लगभग 20th 21st के आसपास रिलीज होती है. सो आई आस्क माय स्टूडेंट्स कि आप एक काम करो, 21st के बाद 5 दिन रख लो, 1-1 घंटा आप उस मैगजीन को पढ़ो. सो 5 hours for 5, as in 1 hour for 5 days each, you are going to finish this magazine. If you have read newspapers regularly, if you are also revising from monthly current affairs, अगर एग्जाम में कोई फैक्ट आपको याद नहीं है तो समझो किसी और को भी याद नहीं होगा. You have prepared much better as compared to others. So don't focus, don't waste your time on remembering things. Simply read. That is what your objective should be. So this is your third source, current affairs. And obviously the fourth and final source is application, which is through tests. Attempt as many tests as you can. You have your Vision IAS test series. There are 35 prelims tests, 25 main, I think 30 mains tests now. We have Abhyas, we have Sandha. एक नया प्रोडक्ट आया है हमारा संधान करके. So संधान में आप जो टॉपिक्स या जो सब्जेक्ट्स आपको लगता है आपके वीक हैं, आप कस्टमाइज करके टॉपिक्स दे सकते हो. वी हैव अ डेटाबेस ऑफ अराउंड 15-20,000 क्वेश्चंस. वहाँ से आप यू कैन एक टेक्स्ट आपका प्रिपेयर होकर आ जाएगा 10, 15, 20, 30 क्वेश्चंस का फॉर अराउंड हाफ एन आवर टेस्ट. तो यू कैन कस्टमाइज टेस्ट ऑल्सो. पॉइंट इज प्रैक्टिस. यू विल हैव टू प्रैक्टिस. अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रैक्टिस हियर. टेस्ट्स कब अटेम्प्ट, कैसे अटेम्प्ट करने, कई स्टूडेंट्स को ये डाउट होता है. पूरी प्रिपरेशन कर लें फिर टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं. पहली बात तो ये कि कभी भी ऐसा समय नहीं आएगा जब आपकी पूरी प्रिपरेशन हो चुकी होगी. 6th अटेम्प्ट आपका होगा तब भी आपको लगेगा अभी ये सब टॉपिक बाकी हैं आपके. सो कभी भी देयर इज नो आइडियल टाइम व्हेन यू आर रेडी टू गो एंड सिट इन द एग्जाम. देयर इज नो सच टाइम. टेस्ट आपके साइमल्टेनियसली अटेम्प्ट होने चाहिए. आप पढ़ रहे हो चीजों को, साथ साथ टेस्ट को अटेम्प्ट करो. देयर शुड बी, देयर इज नो आइडियल टाइम टू अटेम्प्ट अ टेस्ट. एनी टाइम दैट यू वांट यू शुड बी गिविंग टेस्ट. More importantly, what should be your approach to tests? टेस्ट को कभी भी ऐसे नहीं देखना कि मेरे टेस्ट में कितने नंबर आए हैं. 50 में से मैंने 30 सवाल अटेम्प्ट कर दिए, केवल 10 ही अटेम्प्ट कर पाया हूं. ये कभी भी आपका मापदंड नहीं होना चाहिए. शुड नेवर बी योर वे ऑफ असेसिंग योर परफॉर्मेंस इन टेस्ट. हाउ मेनी क्वेश्चंस यू गॉट राइट और हाउ मेनी डिड यू अटेम्प्ट. ज्यादातर टेस्ट जो आप देखते हो, हमारी टेस्ट सीरीज है, कोई सी भी टेस्ट सीरीज है,
ज़्यादातर टेस्ट में जो ऑप्शंस होते हैं वो पर्पसफुली ऐसे ही बनाए जाते हैं स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करने के लिए. Please do not evaluate yourself. Please do not judge yourself negatively if you do not score good marks in test. That is not the purpose of test. टेस्ट का पर्पस होता है जो आपने ऊपर पढ़ा है इसको आपके माइंड में इम्प्रिंट करना. कैसे इम्प्रिंट करोगे? 1, when you look at the question, you will think about the question. Based on whatever knowledge you have gained, whatever logic you have applied, you will mark an answer, or let's say not mark an answer. Now, when you mark that answer, it will either be wrong or wrong, right or wrong answer. Most questions that you get right will be on the basis of luck. आपको सवाल आता नहीं था लेकिन हाँ आप लकी हुए, आपका आंसर सही हो गया. Most questions that you got wrong would be also on basis of luck only. आपको काफी कुछ आता था, कुछ एक छोटा पोर्शन नहीं आता था, इस कारण से आपने गलत मार्क कर दिया. सवाल आपसे पूछ लिया गया, बताओ स्पीकर अपनी रेजिग्नेशन किसको देता है? और 4 ऑप्शन थे उसमें, प्राइम मिनिस्टर, डेप्यूटी स्पीकर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ये 4 ऑप्शन थे उसके अंदर. अब आपने पढ़ा था बार बार लक्ष्मीकांत के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि भाई किसको देता है, याद नहीं है आपको. लेकिन जब आप एग्जाम में इवैल्यूएट कर रहे हो इस चीज को कि हाँ इसको दे सकता है, इसको नहीं दे सकता है, ये प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए. यू आर एक्चुअली ट्राइंग टू यूज लॉजिक एंड राइट अराइव एट एन आंसर. यू मे गेट इट राइट, यू मे नॉट गेट इट राइट. मोर इंपॉर्टेंटली व्हेन यू लुक एट द सॉल्यूशन, उसके बाद आप कभी भी इस सवाल को गलत नहीं करोगे. टेस्ट का पर्पस मार्क्स देखने का नहीं है. टेस्ट का पर्पस है आप लॉजिक से सवाल अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, अपनी नॉलेज सवाल अटेम्प्ट करने की कोशिश करो. सही है गलत है मैटर नहीं करता है, इसका सॉल्यूशन देखना ये मैटर करता है. इफ यू हैव इलैबोरेट सॉल्यूशन टू द टेस्ट, हर एक सवाल के आगे जो इलैबोरेट सॉल्यूशन है उसको पढ़ना है, चाहे सवाल सही किया था चाहे गलत किया था. इसको पढ़ोगे तब आपका टेस्ट अटेम्प्ट कंप्लीट हो रहा है. एक टेस्ट 1 घंटे का, 1.5 घंटे का, 2 घंटे का नहीं है, एक टेस्ट 5 घंटे का होता है. Spend 5 hours in giving a test. When you do this, then you are on the right path to be able to achieve what you started for. This is how you prepare. ये है आपकी प्रिपरेशन जर्नी. इस सब्जेक्ट में खास करके हमको इस तरीके से प्रिपेयर करना होता है. 1, these are our sources, NCERTs, material, current affairs, newspapers, and your monthly current affairs, and test. This is the broad way of preparing for the subject. So how to prepare economics? This is what it is. Syllabus and the manner of preparation. Is it clear? I'll end here now, and if you have any questions, please do ask. I'll answer those questions. Preparation से related, strategy से related, किसी को अगर कोई सवाल है तो पूछो. I'll answer those questions. एक एक करके. 1, 2, 3, 4. Or if anybody also has, please पूछो. बोलो. सर जो डेली न्यूज आता है 4 पेजेस का, शाम को 8 बजे के आसपास आता है जी, तो उसको पढ़ना बेनिफिशियल रहेगा? यार देखो विजन का ही आता है. हाँ बिल्कुल. अरे यार मेरे को पता है यार, मैं विजन में ही काम करता हूँ, मेरे को पता है. सुनो सबकी, कई सारे अच्छे सोर्सेज हैं जहां से हम प्रिपेयर कर सकते हैं. मैंने एनसीईआरटी लिखा है यहाँ पे, जस्ट तुमको एग्जांपल देता हूँ. आई एम श्योर कई सारे लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कि एनसीईआरटी तमिलनाडु वाली पढ़नी है या किसी और स्टेट की पढ़नी है या फिर जो सीबीएसई वाली है वो पढ़नी है, कौन सी पढ़नी है हमको एनसीईआरटी. सारे सोर्स अच्छे हैं. यू हैव टू स्टिक टू वन सोर्स. आपके पास ज्यादा सोर्सेस को अकोमोडेट करने का टाइम नहीं है. अगेन प्रॉब्लम ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज अनलिमिटेड फंड. आपका क्या है लिमिटेड रिसोर्स, बताओ जरा. तो वो एनसीईआरटी या प्लस प्रिपरेशन में लिमिटेड रिसोर्स क्या है? टाइम में तो टाइम है. आइडियल सब कुछ पढ़ना चाहिए आपको, 500 किताबें सारी पढ़ लो, नहीं पढ़ सकते हैं ना. तो हमको ऐसे सोर्स के ऊपर फोकस करना है जहां पे हमारा ऑब्जेक्टिव कॉम्प्रिहेंसिव हो, एरर फ्री हो और जो हम चाहते हैं वो चीज अचीव हो जाए. इफ यू आर रीडिंग न्यूज़पेपर्स, देयर इज नो रिप्लेसमेंट टू दिस. अखबार पढ़ना ही पढ़ना है. अब अखबार जो पढ़ना है उसमें यू वांट मोर अंडरस्टैंडिंग, यू वांट टू रिमेंबर सम थिंग्स. उसके लिए आप फॉर एग्जांपल जैसे हम जो समरी प्रोवाइड करते हैं या फिर डेली न्यूज़ वाला वीडियो भी आता है हमारा, आप उसको देख सकते हो. इफ यू थिंक दैट देयर इज समथिंग दैट यू नीड एन एडिशनल नॉलेज अपॉन. बट इफ यू आर, जैसे आपको 5-6 महीने हो गए प्रिपेयर करते हुए, 7-8 महीने हो गए, आप अखबार पढ़ रहे हो, आई अज्यूम देन यू विल हैव डेवलप्ड अ मैच्योरिटी अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेनी टॉपिक्स बाय योरसेल्फ. देन यू डू नॉट नीड एनी अदर थिंग, देन यू नीड टू रीड जस्ट न्यूज़पेपर. अखबार पढ़ो और मंथली करंट अफेयर्स उसको रिवाइज करो.
अगर कोई स्पेसिफिक टॉपिक, जैसे मान लेते हैं इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट है, बिल्कुल। अब वो चल रहा है, तो अखबार में उसकी कवरेज कॉम्प्रिहेंसिव होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल हो गया। लेकिन पहला ही दिन है, हम उसके बाद पहले ही दिन वीडियो बना देंगे। जब वीडियो आएगा, जैसे डेली न्यूज़ के अंदर वीडियो आया है, या फिर जो हमारा 4 पेजेस का जो समरी आया है, उसके अंदर डेफिनेटली उसके ऊपर काफी इलैबोरेट डिस्कशन होगा। तो यू कैन रेफर टू इट एज अ एड ऑन, एज समथिंग दैट एड्स ऑन अ कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ प्रिपरेशन, बट दैट इज नॉट समथिंग दैट हैज टू बी नेसेसरली अकोमोडेटेड इन योर प्रिपरेशन। एड ऑन है, समझ में आ रही है ना बात? Yes, sir. कि भाई जो है आपकी चाय के अंदर अदरक है, वो आपने एक तरीके से मान लिया, वट एवर, केक के ऊपर क्रीम है, दीज आर एड ऑन थिंग्स। समटाइम्स यू रिक्वायर देम, समटाइम्स मोस्ट ऑफ द टाइम यू डोंट रिक्वायर देम, Yes, sir. अकोमोडेट देम लाइक दैट। ठीक है, Yes, sir. क्लियर है? जी जी बिल्कुल। बोलो। और सर सेकंड थिंग है कि इसके इकोनॉमिक्स के लिए मेनली मेंस का नोट्स कैसे प्रिपेयर करें, वो बड़ा चैलेंजिंग होता है। मेंस का नोट्स कैसे प्रिपेयर करें? प्रिपेयर करें, वो टेस्ट लिखने में प्रॉब्लम्स। आंसर राइटिंग स्किल। बिल्कुल सर। मेंस इज ऑल अबाउट योर आंसर राइटिंग स्किल। what exactly is the skill part here in this answer writing? Skill part is, देखो सब लोग 1-1.5 साल तक प्रिपेयर करोगे, अज्यूमिंग सब लोगों ने अच्छे से प्रिपेयर किया, मीनिंग सीरियसली प्रिपेयर किया, डिसिप्लिन के साथ प्रिपेयर किया है, सब लोग नॉलेज में सेम लेवल के ऊपर होंगे 1-1.5 साल के बाद। इनको आपसे कुछ ज्यादा नहीं आता होगा, लेकिन वन, द एग्जामिनर डज नॉट नो यू एंड यू हैव ओनली अ लिमिटेड टाइम टू प्रेजेंट योर नॉलेज टू द एग्जामिनर। तो उस लिमिटेड टाइम एंड स्पेस के अंदर यू हैव टू मेक श्योर दैट एग्जामिनर गेट्स टू नो व्हाट हैज बीन आस्क्ड इन अ मैनर दैट एग्जामिनर एक्सपेक्ट्स यू टू आंसर। आंसर राइटिंग स्किल, आपके पास एक राइटिंग स्किल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, what you do is you pick up some mains questions. Yes, sir. जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं कि आपने MSP, लीगलाइजिंग MSP, लीगल गारंटी ऑफ MSP चल रहा था अभी बड़े टाइम से, चल रहा है। अखबारों में कई बार इसके ऊपर लेख आया है। Yes, sir. You have read 5, 6, 7 articles on this particular thing, some opposing, some proposing these things. बिल्कुल। Summarize this thing in your own language. Take 1 hour, take 2 hours to write an article on this, to write a note on this. अपना नोट बनाने के लिए इस चीज के ऊपर 1 घंटा 2 घंटा लो, लेकिन अपनी लैंग्वेज में इस चीज को समराइज करके लिखो। जब आप ये एक्सरसाइज करते हो तब आपकी आंसर राइटिंग स्किल्स डेवलप हो रही हैं। Yes, sir. ट्राई टू समराइज सम इशू दैट यू थिंक, एनी इशू, कोई आपको नहीं बताएगा कि भाई यहाँ ये इशू इंपॉर्टेंट है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, इंडिपेंडेंस ऑफ इलेक्शन कमीशन, MSP की लीगल गारंटी, फिस्कल कंसोलिडेशन, देयर आर सो मेनी इशू दैट यू विल कम अक्रॉस डेली न्यूज़पेपर। न्यूज़ इसी चीज की चलती रहती है, चर्चा इसी चीज की चलती रहती है। तो कोई भी टॉपिक्स पकड़ो और हर 2 दिन में, हर 4 दिन में किसी ना किसी टॉपिक को चूज करो, उसके ऊपर 1-2 घंटा स्पेंड करके अपने आप एक नोट बनाओ। दैट इज व्हाट यू शुड डू। ऐसा नहीं है कि आपको कोई एक सर्टेन लिस्ट ऑफ टॉपिक्स कोई देगा, उन टॉपिक्स के ऊपर अपने नोट्स बना के तैयार करने हैं। आप अखबार में जो भी टॉपिक्स आपको आजकल इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, सिंपली पिक अप दोस टॉपिक एंड राइट नोट्स इन योर ओन लैंग्वेज। द पर्पस इज नॉट टू प्रिपेयर नोट ऑन द टॉपिक, द पर्पस इज टू डेवलप एन आंसर राइटिंग स्किल। राइटिंग, ये पर्पस होना चाहिए, ऐसे हमको प्रिपेयर करने हैं नोट्स। Yes, sir. ठीक है, ठीक, थैंक यू सर। बोलो। ओके, पीछे आंसर राइटिंग, चलो और हाँ, PYQ कितने साल के सॉल्व करने हैं? PYQ कितने साल के सॉल्व करने हैं? इममटीरियल है। सर फिर भी मैं बोल दूं 4 साल के करने हैं और वो 5वें साल का सवाल था, वो इंपॉर्टेंट था, तो सर एक अनुमान तो होगा ना सर? नहीं, कोई अनुमान नहीं है, और ये गलत है। ये भ्रम फैलाना बहुत गलत है। लोगों को ये बताना कि नहीं पिछले 5 साल के कर लो हो जाएगा, पिछले 2 साल के कर लो हो जाएगा, अखबार पिछले 1 साल का पढ़ लो, करंट अफेयर्स 1 साल के पढ़ लो हो जाएगा, ये बिल्कुल गलत चीजें हैं। आप इस तरीके से अगर चीजों को अप्रोच करने लगोगे तो फिर आप मटेरियल कलेक्टर ही बनते चले जाओगे। आप एक स्ट्रैटेजी बनाइए दैट आई हैव लेट्स से 1 ईयर टाइम, इन दैट 1 ईयर टाइम आई हैव टू कवर ऑल दीज थिंग्स। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे कवर करने, मैंने बोला कि आप वीडियो से कवर कर लो। वीडियो में हमने एक रैंडम नंबर 7 ईयर्स चूज कर लिया। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप 7 ईयर में फिर लास्ट के 2 साल के हटाओ और 5 साल वाले सवाल के ऊपर ही फोकस करो। यू हैव सम रिसोर्स, फोकस ऑन दैट रिसोर्स। ठीक है, प्लीज डोंट एलिसिट एन आंसर फ्रॉम मी कि मैं आपको बताऊं कि नहीं पिछले 4 साल के ही पढ़ने हैं, ये गलत हो जाएगा बिल्कुल। और अगर कोई आपको इस चीज का एडवाइस देता है तो वो आपके बेस्ट इंटरेस्ट में एडवाइस नहीं दे रहा है। ठीक है, आप 1 साल का कर सकते हो, 2 का कर सकते हो, 3 का कर सकते हो, आप जितना कर सकते हो उतना करो। जो आपके पास अवेलेबल है उसी चीज को आप बार बार पढ़िए, रादर देन गोइंग फॉर कि मेरे को नहीं 4 साल का है, सारे के सारे मैं पहले लेके आऊंगा उसके बाद ही पढ़ना स्टार्ट करूंगा। ऐसा नहीं करना है। ठीक है,
सर ये हिंदी मीडियम को लेकर करंट अफेयर्स कैसे कवर करें? हिंदी मीडियम को लेकर करंट अफेयर्स कैसे कवर करें? वन, यू शुड रेफर टू न्यूज़पेपर्स, द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस. अब सैडली दे आर नॉट अवेलेबल इन हिंदी, और इफ देयर हिंदी वर्जन इज अवेलेबल आई डोंट थिंक सो दैट वुड बी टू गुड. तो आपको अखबार तो इंग्लिश वाला ही पढ़ना पड़ेगा. आप ये मत सोचिए कि आपको उस अखबार में से चीज़ों को पढ़ना है, याद करना है. सिंपली यू रीड, यू गेट अ मैच्योरिटी, यू नीड अ सर्टेन कमांड ओवर इंग्लिश. इवन इफ योर मीडियम इज हिंदी, आपको एक बेसिक कमांड इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर भी चाहिए ही चाहिए. एंड वाइस वर्सा ऑल्सो, इफ योर मीडियम इज इंग्लिश, आपको हिंदी के ऊपर भी बेसिक कमांड चाहिए ही चाहिए. नॉट जस्ट कि पेपर में अटेम्प्ट करना है, बट बिकॉज हमारी मातृभाषा है तो आप मोस्ट ऑफ द टाइम कन्वर्सेशन क्लास में फ्रेंड्स के साथ जो करोगे तो आपको उतनी हिंदी आनी चाहिए. सिमिलरली आपको उतनी इंग्लिश आनी चाहिए. अब आप हिंदी मीडियम के तो आपके लिए थोड़ा सा जो क्लाइंब है वो ज़्यादा स्टीप है, कि बिकॉज यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू हैव मोर नॉलेज ऑफ इंग्लिश. लेकिन हाँ, करंट अफेयर्स के लिए आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट दैट यू रेफर टू न्यूज़पेपर्स ओनली. जो मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन है वो हमारी हिंदी में भी आती है, तो रिवाइज आप वहाँ से कर लेना. लेकिन आप प्राइमरी सोर्स तो अखबार ही है, उसको मतलब मेरे से सैडली वर्ड मत निकलवाओ कि मैं बोलूँ कि आप किसी डिसएडवांटेजेस पोजीशन में हो. वन, अंडरस्टैंड कि आप डिसएडवांटेज पोजीशन के अंदर नहीं हो. देयर इज अ गुड सोर्स अवेलेबल, इंग्लिश लैंग्वेज सोर्स. जो क्लास में इंग्लिश मीडियम वाले बैठे होंगे ना, वो भी नहीं पढ़ पाएंगे द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस. तो आप ये मत सोचो कि आप किसी डिसएडवांटेज पोजीशन के अंदर हो. बहुत ही कम लोग हैं जो उस अखबार को अच्छे से उन अखबारों को पढ़ पाते हैं. सो दैट इज योर गुड सोर्स, रेफर टू दैट सोर्स. मंथली करंट अफेयर्स वो हिंदी में अवेलेबल है, वहाँ से रिवाइज करना. ठीक है, दैट इज व्हाट. सर करंट अफेयर उसके क्या कहते हैं, सॉरी बोलो बोलो, पीछे था किसी को सवाल. पीवाई क्यों क्या था पीछे तुम्हारे है सवाल. So when we see the modern trend of UPSC, especially the essay part, we are seeing that the questions are inclining towards philosophical essays, and to tackle those questions is a bit a tricky question. Sometimes you need to have a strategic point of view to how to tackle those, because when it comes from history or blatant questions, a person has a view. Yeah. So. One, I can answer this question right now. I can. But second, we have Smriti Shah ma'am who would be taking up essay and society and ethics in the class. So I can answer, but her answer would be an expert answer. So please wait for that. Just a second part. Yes, please. So like we are just starting our preparation. We just came out from our third year. We are in the final year of engineering. What should be a template timeline from now on till the 2025 attempt? So how should we plan things? When is the time to start the prelims answer writing and taking some mains answer writing to just have a conceptual clarity? Okay. Many of you would be in your final or second year of graduation. Some of you would have graduated, right? One, there is no, as is obvious, there is no one size fits all approach. Everybody has their own available time, so therefore they plan accordingly. For students who are graduating this year or next year and have, generally speaking, मान लेते हैं आप लोग 2025 में अटेम्प्ट दे रहे हो, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ 25 में अटेम्प्ट दे रहे हो. You have around 1 year time before prelims. Do not separate your preparation at any stage into prelims, mains और interview. Again, एक भ्रम है जो कई बार फैलाया दिया जाता है कि prelims अलग है, mains अलग है. बिल्कुल भी नहीं है, कोई distinction नहीं है. यार economics है. हाँ, मेंस स्पेसिफिक कुछ टॉपिक्स हो सकते हैं, जैसे लैंड रिफॉर्म्स का टॉपिक है, या फिर मेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं, जैसे सोसाइटी का सब्जेक्ट है, उसके प्रीलिम में सवाल नहीं है. मेन स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं, लेकिन सब्जेक्ट वाइज देयर इज एब्सोल्युटली नो डिस्टिंक्शन. सो प्लीज डू नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन दीज थिंग्स. हाउ शुड यू अप्रोच द सिलेबस? Look at the topics, economics, polity, society, whatever the topics are, whatever the subjects are, look at the subjects, make a plan कि भाई हाँ, मान लेते हैं अगले साल 20 मई को प्रीलिम है, 20th मई को, एक महीना पहले आ जाओ, 20th April. By 20th April, your entire preparation should be complete. When I say entire, it means your optionals, your mains, everything should be complete by 20th April. In last 1 month, you will be focusing more on prelims. When I say prelims, it would mean that you will be focusing on tests, PT tests and revising them. तो लास्ट 1 मंथ हम इस चीज के लिए रख देते हैं. तो 20 अप्रैल तक आपको ये काम करना है, ऑप्शनल के साथ प्रिपेयर करना है. तो अब इस तरीके से आज से स्टार्ट हो जाओ. मान लेते हैं आज 20 मई है,
So 20th May to 20th April you have 11 months and then you can divide कि भाई यहाँ मेरे को ऑप्शनल इस तरीके से इस डेट तक खत्म करना है, जीएस का सिलेबस एक एक दिन में टारगेट लेके चलो. So this is how you can make your plan. So once you start, क्या है ये चीज़, ये आप बैक तरीके से प्लानिंग कर रहे हो, ऑब्जेक्टिव से प्लानिंग कर रहे हो. जब आप ये काम करते हो रादर देन आप यहाँ से अगर आगे चलोगे ना तो फिर कभी भी आप 20th April को वहाँ पे नहीं पहुँच पाओगे जहाँ पे आप होना चाहते हो. So do this task that by 20th April I have to achieve this. Just for example, let's say 20th March, 20th Feb, 20th Jan, 20th December. Let's just example है ये. In this period, you'll finish your optional 1, optional 2, optional 1, optional 2. So you are going to revise your optionals 2 times from 20th December to 20th April. So this is kind of a timeline by objectives. You have an objective, you can now stick to that objective. इस तरीके से आप प्लान कर सकते हो, ठीक है. इफ यू आर स्टार्टिंग जस्ट नाउ तो आपके जो इनिशियल मंथ्स हैं वो एनसीईआरटीज पढ़ने के अंदर चले जाएंगे. अगेन एक और ऑब्जेक्टिव बताता हूँ, अगर इस साल एग्जाम नहीं दे रहे हो तो कब है प्रीलिम्स इस साल? 16 जून को है, 16, 17, 16 जून को है. अराउंड 1 मंथ का टाइम है. अज्यूम कर लो इस साल एग्जाम दे रहे हो और अज्यूम कर लो आपके पास केवल एक ही महीना है. सो इन फर्स्ट 1 मंथ गिव एज मच एज यू कैन. जो भी बेसिक, अब एक महीने में सब कुछ तो नहीं पढ़ सकते ना, लेकिन एक महीने में कुछ बेसिक्स तो पढ़ ही सकते हो ना. एटलीस्ट एनसीईआरटीज तो पढ़ सकते हो ना सारे सब्जेक्ट्स की जो भी रिक्वायर्ड है. सो रीड पॉलिटी एनसीईआरटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सोसाइटी एनसीईआरटी, हिस्ट्री एनसीईआरटी. तो ये सब एनसीईआरटी 2-2, 3-3 बार पढ़ लो इस महीने के अंदर. पॉइंट इज एक स्टार्ट मिल जाएगी ना. एग्जाम देना भी नहीं है और ये करने के बाद शायद एग्जाम क्वालिफाई भी नहीं कर सकते हो, लेकिन हाँ एक मोमेंटम आपका बन जाएगा. सो दिस इज हाउ यू कैन बिगिन योर प्रिपरेशन टुडे. सो पॉइंट बीइंग देयर मस्ट बी सम गोल पोस्ट, स्पेसिफिकली डिफाइंड गोल पोस्ट कि हाँ 16 जून तक ये करना है, 20 अप्रैल तक यहाँ तक प्रिपेयर करना है. ये जब गोल पोस्ट होंगे तब ऑटोमेटिकली वो आग, जोश, डिसिप्लिन सब कुछ आ जाएगा प्रिपेयर करने के लिए. ठीक है, गॉट योर आंसर? और एनीथिंग एल्स, एनीथिंग स्पेसिफिक? सर हाँ बोलो. मुझे प्रिपरेशन अभी शुरू करनी है जी. पढ़ाई मैंने मतलब 6 साल छोड़ दी थी. अच्छा, तो कहाँ से शुरू करूँगा? 6 साल हो गए पढ़ाई नहीं की है. मतलब पेपर के दौरान बस दिया था, ग्रेजुएशन किया था जी. तो जब पेपर होते थे तो उस टाइम पढ़ता था बस जी. उसके बाद फिर कभी मतलब बीच में कभी नहीं पढ़ा. तो अभी मुझे शुरू करना है. मतलब ये एकदम से थॉट आया? एकदम से थॉट आया अचानक से. प्रिपरेशन शुरू करनी है. हाँ, इसके बीच बहुत कुछ कर लिया ना. सब नहीं कुछ नहीं, करके अब कारण वारण तो हम डिस्कस नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ अभी आपको एकदम से प्रिपरेशन शुरू कहाँ से करें सर? आपकी प्रिपरेशन और इनकी प्रिपरेशन में कुछ अंतर तो नहीं होगा ना. इनको भी वही पढ़ना है जो आपको पढ़ना है, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, फिजिक्स के जो भी सब्जेक्ट्स हैं आपको भी वही पढ़ने हैं. तो शुरू तो सभी को सेम जगह से करना है. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो, एनसीईआरटी बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखो, जो कोई भी रेफरेंस बुक है हर एक सब्जेक्ट की रेफरेंस. मैंने अपनी रेफरेंस बुक बता दी है कि विजन का मटेरियल है. हिस्ट्री वाले सर आएंगे वो अपनी किताब बताएंगे जो भी किताब है. सो रेफर टू दो सोर्सेस. बेसिक प्रीमाइस और प्रिपरेशन तो सभी का ही रहेगा, चाहे आप 6 साल बाद शुरू कर रहे हो चाहे आज शुरू कर रहे हो, प्रीमाइस यही रहेगा. सो लुक एट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. तो जैसे मैंने बोला यूट्यूब पे जाओ, यूट्यूब के ऊपर प्रीवियस ईयर एनालिसिस देख लो 7 ईयर्स का जो हमारा है, मेंस का भी है, प्रीलिम्स का भी है. लुक एट दैट एनालिसिस, try to see that what is the nature of questions, depth of knowledge required, inspiration of questions. तो ये चीज़ें देखो, सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ये देखो फिर उसके बाद यहाँ से स्टार्ट कर लो. तो अगर सर अभी कोचिंग के लिए काम, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अभी कोचिंग ज्वाइन करें कि ना करें? अब ये तो यार पर्सनल डिसीजन आपका है ना कि कोचिंग. नहीं मतलब ऐसे कुछ सजेस्ट कर दीजिए. नहीं, इसमें मैं कैसे सजेस्ट कर सकता हूँ कोचिंग आपको ज्वाइन करनी कि नहीं करनी. कोचिंग ज्वाइन करने का पर्पस क्या होता है? दैट वन, rather than being confused initially about all the things start to fall in place immediately. तो आप अपनी प्रिपरेशन जल्दी अच्छे से फोकस मैनर में स्टार्ट कर सकते हो. ये कोचिंग ज्वाइन करने का बहुत बड़ा एडवांटेज होता है. आई एम श्योर, और कई सारे लोग बिना कोचिंग के भी निकालते ही हैं, है ना. तो बिना कोचिंग के जो निकालते हैं, वन हो सकता है लक के कारण निकालें, वो प्रोडिजी हों, बहुत मेहनती और बहुत इंटेलिजेंट लोग हों, या फिर जो है सिंपली दे वर एबल टू spend 2-3 years, 5-6 years in preparation and then they got through. तो हर एक चीज़ के अपने एडवांटेजेस हैं, कॉस्ट हैं. कोचिंग की कॉस्ट ऑब्वियसली आपका पैसा काफ़ी लगता है कोचिंग के अंदर, रहने का खर्चा आता है, लेकिन हाँ आपकी जो प्रिपरेशन है वो डायरेक्शन एकदम से पकड़ लेती है, सही डायरेक्शन में जाने लगती है. अब उसके बाद तो आपको खुद ही मेहनत करनी है कोचिंग ज्वाइन करने के बाद भी. तो वो डिसीजन आपका है कि आपको कितना टाइम, 6 साल आपके हो गए हैं तो आपको और अगर टाइम स्पेंड करना है भटकने में तो इट इज़ योर डिसीजन. ठीक है. एनीथिंग एल्स, एनीवन? हाँ बोलो.
बोलो। गुड आफ्टरनून सर। सर मेरा क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि करंट अफेयर्स में अपार्ट फ्रॉम न्यूज़पेपर्स एंड मैगज़ीन बहुत लोग सजेस्ट करते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का वेबसाइट भी देखने के लिए, या फिर जो बजट सर्वे होता है, इकोनॉमिक सर्वे होता इकोनॉमिक है, सर्वे, बजट डॉक्यूमेंट्स, यस सर्टेनली यस। सर उसको कैसे लाइक हम लोग उसमें इंफॉर्मेशन लाइक उससे निकाल सकते हैं, या फिर क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, मतलब व्हेन यू हैव ओपन वन वेबसाइट तो Got it. क्या पार्ट पढ़ना है? Again, there are many good sources of things. One, we do not have time and luxury to spend to look at all the sources. Economic survey is that one of those sources जो हमको देखना चाहिए. तो apart from current affairs में यहाँ पे एक चीज़ और ऐड कर लेते हैं हम, economic survey. तो economic survey बजट से एक दिन पहले रिलीज किया जाता है. लगभग 300 पेज के आसपास का एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि मेरे ओपिनियन में सबको पढ़ना चाहिए. अगेन, रीड एज यू रीड न्यूज़पेपर. डू नॉट रिमेंबर. अगर याद करने जाओगे इकोनॉमिक सर्वे तो उसके अंदर तो 5000 करोड़ फैक्ट्स होंगे, रैंडम फैक्ट्स याद नहीं करने हैं. रीड बिकॉज इट इज काइंड ऑफ अ फास्ट ट्रैक कोर्स ऑफ मैच्योरिटी. जो पिछले एक साल में इकोनॉमी के अंदर हुआ, सरकार ने कोई भी डिसीजन लिए, क्यों लिए, उन सब के बारे में लिखा होगा. आगे हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, इकोनॉमी क्या क्या चैलेंजेस फेस करेगी, क्या क्या हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं, उसके रिस्पेक्ट में हमको क्या डिसीजन लेने चाहिए, वो बारे में वो लिखा होगा. सो इट इज काइंड ऑफ अ होल सोल एनालिसिस ऑफ व्हाट आवर इकोनॉमी पॉलिटी हैज बीन थ्रू एंड व्हाट डू वी एक्सपेक्ट इट टू गो इन फ्यूचर. सो रीड इट एज दैट डॉक्यूमेंट. डोंट रीड इट एज सम फैक्ट कि सरकार का फिस्कल डेफिसिट कितना था, ट्रेड डेफिसिट कितना था, क्या चीज हमने एक्सपोर्ट करी, इंपोर्ट करी. फैक्ट के तौर पे नहीं देखना उसको, सिंपली उसको रीड करो एज अ डॉक्यूमेंट ऑफ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी. सो रीड इट, दैट इज वन सोर्स. अगेन, उसको कैसे पढ़ना है, एक काम कर, जैसे इसको मैंने क्या बोला कि 21 तारीख को रिलीज हुआ है, एक घंटा आपने अगले 5 दिन के लिए लगा लिया. सिमिलरली मान लेते हैं 1 फरवरी को रिलीज हुआ है, तो यू स्पेंड 1 आवर एवरी डे फॉर नेक्स्ट 15 डेज. 15 घंटे का डॉक्यूमेंट है, पूरा पढ़ सकते हो. 1 आवर एवरी डे फॉर नेक्स्ट 15 डेज. जस्ट रीड इट वंस. डू नॉट रिमेंबर. एक भी लाइन को दोबारा नहीं पढ़ना, किसी को याद नहीं करना, बस एक पढ़ना है, केवल पढ़ लो इस चीज को. दैट इज द वे ऑफ गोइंग अहेड विद दिस. ठीक है, क्लियर? बोलो. सर ऑल्सो इंडियन इकोनॉमी एनसीईआरटी, उसमें न्यू एडिशन पढ़ना चाहिए या ओल्ड? जो आपके हाथ में है. H2O का फॉर्मूला चेंज नहीं हो जाएगा ना, पानी तो वही रहेगा. तो डोंट बॉदर अबाउट दैट. इट इज सिंपली रिविजन्स टेक प्लेस बिकॉज मे बी सम थिंग्स आर कट बट न्यू थिंग्स आर एडेड, सम पैराग्राफ्स आर चेंज, लैंग्वेजेस, कॉन्सेप्ट्स डू नॉट चेंज. सो जो आपके हाथ में है, अगेन ये नहीं कि तमिलनाडु की पढ़नी है, अभी से पुरानी वाली पढ़नी है, उससे पुरानी वाली पढ़नी है, जो आपके हाथ में है वो पढ़नी है. ठीक है, कोई इन चीज़ों के ऊपर दिमाग नहीं. यहीं पे हम आधे लोग मात खा जाते हैं कि क्या चीज़ पढ़ें, कितने साल का पढ़ें, कौन सी किताब, यहीं पे मात खा जाते हैं. ठीक है, चलो. एनीथिंग एल्स? बोलो जल्दी. सर मेरा भी क्वेश्चन करंट अफेयर्स के लिए ही था. वो है कि सर मंथली मैगजीन तो हम लोग पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर भी पढ़ रहे हैं, उसके बाद जो ईयरली बेसिस पे PT 365 मेन 365 आता है, अगर हम मंथली ना पढ़ के अगर ईयरली बेसिस पे पढ़ ले तो वो भी का हो सकता है स्ट्रेटेजी? भी की जगह और कर लो, मंथली भी पढ़ लो और PT 365 भी पढ़ लो. अब ये चीज़ें जो है ना, ये चीज़ें होती हैं जब हम अपनी प्रिपरेशन को, जैसे मैंने बताया है, ऐसे हम प्लान करते हैं. तो when we plan, now that let's say हमने प्लान बनाया है कोई, then we have कि हाँ लास्ट 1 month में या 2 month में I'll be focusing on PT 365 of subjects. Your current affairs, precisely speaking now, current affairs will have 3 sources, 3 layers. One would be the primary layer, that is newspaper. Second would be monthly, you will revise it from your monthly current affairs. And third, एग्जाम से पहले आप PT 365 से रिवाइज करोगे. अगेन इसको भी केवल पढ़ना है. इतना आप अगर कर पा रहे हो, याद नहीं, केवल पढ़ पा रहे हो, इफ यू आर डूइंग दिस यू विल रिमेंबर मोस्ट ऑफ द फैक्ट्स बाय योरसेल्फ. केवल पर्पस रिवीजन का है. रिवीजन तभी हो पाएगी जब हम सोर्सेज लिमिट करेंगे. रिवीजन अगर हम सोर्सेज बढ़ाते चले जाएंगे, रिवीजन कभी नहीं हो पाएगी. तो अखबार पढ़ना आदत है, वो करनी ही करनी है. मंथली करंट अफेयर्स, अगेन वो भी एक आपकी पार्ट ऑफ हैबिट, पार्ट ऑफ योर स्ट्रैटेजी होना चाहिए कि फ्रॉम 21st to 26th आई विल फिनिश मंथली करंट अफेयर्स एवरी मंथ. एंड देन फाइनली जस्ट बिफोर योर प्रीलिम्स, जो आपके 2 महीने हैं पहले वाले, उसमें आप अपना PT 365 को रेफर करो. दैट इज व्हाट योर स्ट्रैटेजी शुड बी. ठीक है, चलो बोलो. थैंक यू सर. बोलिए बोलिए. ऑनलाइन ऑफलाइन और लाइक बोथ? ऑनलाइन ऑफलाइन और बोथ, अब ये तो स्वाद अनुसार है.
अब ये चीज़ आपको अगेन मैं भी आंसर कर सकता हूँ इस चीज़ को, बट जो काउंसलर्स हमारे हैं वो इन क्वेश्चन के साथ ज़्यादा फ्रीक्वेंटली डील करते हैं, तो उनके पास इन चीज़ों के बेटर जवाब होते हैं. मेरा आंसर बस ये एक जेनरिक्स आंसर है कि डिपेंड्स अपॉन योर प्रेफरेंसेस. आई थिंक दे वुड बी एबल टू बेटर आंसर दिस थिंग. ठीक है, समय है तो मेरे ख्याल से ऑफलाइन कोचिंग, मेरे ख्याल से पर्सनल ओपिनियन, ऑफलाइन कोचिंग का रिप्लेसमेंट नहीं है. ऑफलाइन कोर्सेज क्लास में आपको टीचर से इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है, लाइव इजीली आप सवाल पूछ सकते हो. ऑनलाइन में आप सवाल पूछते भी हो, बट कई बार ऐसा होता है कि एक सेटिस्फैक्शन नहीं रहती है कि टीचर ने इमीडिएटली आपका क्वेश्चन आंसर नहीं किया. आप लिखोगे, कोऑर्डिनेटर के पास जाएगा, फिर मेरे पास आएगा, तो वो शायद सेटिस्फैक्शन मिस हो सकती है. ऑफलाइन में वो चीज़ रहती है कि आप रियल टाइम में इंटरेक्ट कर सकते हो. ठीक है, चलो, टेक केयर एवरीबॉडी. अरे देयर आर अदर टीचर्स हु विल आंसर द क्वेश्चंस प्लीज. ठीक है, चलो, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, बोलो. नोट्स, ये मजदूरी वाला काम हमने किया है तुम्हारे लिए. मंथली करंट अफेयर्स और फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं. हम केवल एक या दो अखबार से नहीं, वी आर प्रिपेयरिंग मंथली करंट अफेयर्स फ्रॉम 10-12 गुड सोर्सेज, मैगजीन्स एंड ऑल. We are preparing your notes for you, so you don't have to focus on, you just focus on reading these things. Current affairs का नोट नहीं बनाना चाहिए, कोई पर्पस नहीं है. ये वाले नोट्स जो है, ये आपने कोई टॉपिक चूज किया, ये नोट बनाने का पर्पस है आंसर राइटिंग, दैट यू आर डेवलपिंग अ राइटिंग स्किल. राइटिंग स्किल के लिए सर्टनली नोट्स बनाओ, उसके लिए बनानी चाहिए. लेकिन नोट्स ये बनाना कि हाँ मैं एग्जाम से पहले रेफर करूंगा एक दिन उन नोट्स को, वो कोई पर्पस नहीं है. बुक से नोट्स बनाना, अगेन कोई रीजन नहीं है, कोई पर्पस नहीं है. अगर आपको लगता है कि नोट बनाने से आपको चीजें याद होती हैं, रिवाइज होती हैं, तो गो हेड एंड बनाओ नोट्स, बट ऐसा कुछ वो फिर अगेन पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है वो चीज़. ठीक है, चलो प्लीज. अब यार इट्स ऑलरेडी मच मोर ओवर टाइम. ठीक है, ओके, थैंक यू.